أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ہمارا درس و گفتگو شرائع الاسلام میں کتاب الزکوٰۃ میں چل رہا ہے۔ کل ہم نے نصاب کی بحث میں گفتگو کی تھی کہ مفت نصاب جو ہے وہ 12 ہے، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اور آج ہم شروع کرتے ہیں گائے کے نصاب سے کہ گائے کا کیا نصاب ہے اور بھیڑ بکری کا نصاب کیا ہے۔ گائے کے دو نصاب ہیں، ایک 30 اور ایک 40۔ جب 30 ہو جائے تو ایک طبیعہ دینا ہے، اور جب 40 گائیں ہوں تو ایک مسنہ دینا ہے۔ طبیعہ اس گائے کے بچے کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ گئے ہو، جس کو دوسرا سال شروع ہو گیا۔ اور 40 اگر گائیں ہیں تو اس پر ایک مسنہ دینا ہے۔ مسنہ اس گائے کے بچے کو کہتے ہیں کہ جو 2 سال پورا کر کے تیسرے سال میں لگ گیا۔ تو یہ گائے کا مختصر نصاب ہے جو بتایا گیا ہے کہ گائے کے صرف 2 نصاب، ایک 30 اور ایک 40۔ جبکہ آپ نے گزشتہ درس میں اونٹ کے نصاب پڑھے ہیں، کتنے؟ 12۔ اونٹ کے 12 نصاب اور بھیڑ بکری کے 5 نصاب ہیں، لیکن گائے کے صرف 2 نصاب، یا 30 یا 40۔ 30 ہے تو ایک طبیعہ، یعنی گائے کا وہ بچہ کہ جس کی عمر یعنی جو 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ گیا ہو۔ اور اگر 40 گائیں ہیں زکوٰۃ نکلنی ہے تو اونٹنی کا گائے کا وہ بچہ کہ جو 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں لگ گیا ہو، جسے مسنہ وہ دیا جائے۔ یہ ہے مختصر سا نصاب گائے کا، یعنی جو صرف 2 نصاب بتائے گئے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ بکری کا نصاب، اس کے نصاب 5 ہیں۔ بھیڑ اور بکری کے نصاب 5 ہیں، 5 نصاب ہیں: 40، 121، 201 اور 301 اور اس کے بعد ہر مثلاً جو ہے وہ ہر 100 پہ 1 بکری جو قول ہے فیل ہے۔ یہ اسی طرح مثلاً کہا گیا کہ ایک قول ہے یہ بھی 4 واجب ہے، مثلاً یہاں تک کہ 400 ہو جائے۔ پھر مثلاً جو ہے وہ ہر 100 میں سے 1 بکری لیں گے جتنی بھی ہو جائیں، اور یہ مشہور ہے۔ تو گائے کے نصاب بتائیے 5، بکری کے 5، گائے کے 2 ہیں اور بکری کے اور غنم کے بھیڑ کے 5 نصاب، 40، 121 اور 201، 301 اور اس کے بعد جو مثلاً ہر 100 پہ یا جو 400 تک پہنچ جائیں تو ہر 100 پہ مثلاً 1 بکری دی جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 40 بکری ہیں تو کتنی زکوٰۃ ہوگی اس کی، اور اگر جو ہے وہ کسی کے پاس 121 ہیں تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ کہا کہ اگر 40 بکری ہیں تو 1 بکری دی جائے گی زکوٰۃ۔ اگر 40 بکری ہیں تو 1 بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی، اور اگر 121 بکری کسی کے پاس ہو گئی ہیں اور شرائط پورے ہو رہے ہیں تو 2 بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی، اور اگر 201 کسی کے پاس ہیں اور شرائط پورے ہو رہے ہیں تو زکوٰۃ میں 3 بکریاں دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اگر 301 ہے اور اس طرح جو ہے وہ جو بڑھتا چلا جائے تو ایک قول ہے کہ ہر 100 میں سے 1 لیں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر مثلاً
वाजिब है कि 4 बकरियां लें, यहाँ तक के 400 तक पहुंच जाएं, यानी हर 100 में एक लेते रहे, फिर हर 100 में से एक लेते रहे, जितना भी होता रहे आगे जितना भी हो जाए। तो यानी एक कौल ये है कि 4 वाजिब है, 4 बकरियां वाजिब है, यहाँ तक के 400 बकरियां हो जाए, फिर हर 100 में से एक लेते रहे, जितना बढ़ता रहे आगे, तो जितना आगे जाता रहे हर 100 में एक लेते, और ये कौल मशहूर है। अब ये था हमारे दर्स का आज का खुलासा, जिसको हम लोग तस्वीर करते हैं, दोबारा सर कर लेते हैं। कह रहे हैं कि वफिल बकरे निसाबान, कह रहे हैं कि वफिल बकरी निसाबान, गाय में 2 निसाब, यानी गाय के 2 निसाब, सलासून व अरबाऊन दाइमन, हमेशा गाय के 2 निसाब हैं, एक 30 और एक 40। करें वफिल, ये तो होगी बात गाय, और ये बताया हमने कि गाय में कैसे, मसलन कि अगर 30 किसी के पास गाय है तो एक तबिया, यानी गाय का वो बच्चा कि जो 1 साल पूरा करके दूसरे साल में लग गया, और अगर 40 गायें हैं तो गाय का वो बच्चा कि जो 2 साल पूरे करके तीसरे साल में दाखिल हो गया, यानी मुस्लिम का दायमन, यानी जो है हिसाब, यानी एक निसाब 30 है और एक जो है वो 40 है। अगर जो इससे ज्यादा बढ़ जाए तो या तो 30 पे हिसाब होगा या 40 पे हिसाब। 30 पे करना है तो एक तबिया, यानी वो बच्चा गाय का जिसकी उम्र जो है वो, यानी जो 1 साल पूरा करके दूसरे साल में लग गया, और अगर 40 पे कर रहे हैं तो मुस्लिम है, यानी वो गाय का बच्चा कि जो 2 साल पूरे करके तीसरे साल में लग गया। अब आइए गनम, वफिल गनम, वफिल गनम में खमसा नसुब, और गाय में, बकरी में, भेड़ बकरी में 5 निसाब है। अरबाऊना वफीहा शाह, 40 बकरियां अगर हो जाए और शराइत पूरे हो रहे हो तो एक बकरी। सुम्मा मिआ वहदा वइशरून, फिर 121 अगर किसी के पास है, दूसरा निसाब क्या है 121, वफीहा 121 में शातान, अगर किसी के पास 121 है बकरियां तो उसमें 2 बकरियां जाएगा। सुम्मा मिअतान व वाहिदा, फिर 201, अगर 201 किसी के पास है, वफीहा, उसमें क्या जाएगा सलासा सियाह, 3 बकरियां, ठीक। सुम्मा सलासमीत व वाहिदा, सलासमिया व वाहिदा, फिर 301 अगर किसी के पास हो गई है, फइजा बलगत ज़ालिका, अगर इस तरह जो है वो पहुंच जाए, बढ़ती रहे ऐसे, तो कहना है कि तीला, ये कौल है, कील है क्या, यूखज़ मिन कुल्लि मीर शात, मिन कुल्लि मिया शात, हर 100 में से हर 100 पर एक बकरी ली जाएगी, कील है ये। वकीला, और दूसरी कील क्या है, दूसरा कौल क्या है, बल तजिबु अरबा शिया, दूसरा कौल यह है कि बल्कि 4 बकरियां, हत्ता तबलुग अरबा मील, और जब 400 तक पहुंच जाए, यहाँ तक के 400 तक पहुंच जाए, कितना है, फतूखज़ मिन कुल्लि मिया, मिन कुल्लि मिया शात, तो हर 100 में से हर 100 पर एक बकरी ली जाएगी, बालिगम मा बलगा, चाहे कितनी हो जाए, फिर आगे हर 100 पर एक बकरी ली जाएगी। ये बकरियों का और भेड़ का निसाब है। वाहुवल अशहर, साहिब शराए रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि यही अशहर है, तो मशहूर तरीन राय और कौल यही है, उनके नजदीक यही कौल यही है। कह रहे हैं वह तज़हरुल फायदा फिल वजूबे व फिल ज़मान, और अब ये इसका फायदा जो है वो जाहिर होगा वजूब में और ज़मान में, यानी वल फर्ज तो तजिबु फी कुल्लि निसाबिन मिन नुसब हाजिल अजना, यानी अगर किसी इंसान के पास एक निसाब पूरा हो गया,
निसाब पूरा हो गया और वो अब अगर उस निसाब को अदा करने पर कादिर था, साल हो गया और अदा करने पर कादिर था और अदा नहीं किया, तफरीद की अगर, तो फिर ये ज़ामिन है। और अगर साल पूरा होने से पहले इसमें नफ्स हो गया या तफरीद नहीं की मसलन अदा करने में, तो फिर ये ज़ामिन नहीं है। बता ज़रूर फायदा फिल वजूबे बल फिल ज़िमान वल फरीज़तु तजिबु फी कुल्ले निसाबिन मिन नुसब हाज़िल अजनास। कह रहे हैं वाजिब है, बल फरीज़तु तजिबु, वाजिब है हर निसाब में, मिन नुसब हाज़िल अजनास, इन अजनास के जो निसाब बयान किए गए हैं उस पर ज़कात वाजिब है। सही है, यानी जो हमने निसाब बयान किए हैं, मसलन ऊँट का हमने 12 निसाब बयान किए हैं, ऊँट के 12 निसाब बयान किए हैं, मसलन 5 ऊँट पे 1 बकरी, 10 पे 2, 15 पे 3, 20 पे 4 और 25 पे 5, और अगर जो है वो 26 हो गए तो बिनते मखाज, 36 हो गए तो बिनते लगून, और फिर मसलन जैसे जैसे होता जाए हिक्का या जिजा वगैरह, फिर 2 मसलन बिनते मखाज वगैरह जो बयान किए हैं हमने, यानी जो मसला जो बयान किए गए हैं इस तरह। तो जितनी मकदार हमने बयान की है निसाब की, तो निसाब जितना है, अब जैसे गाय का निसाब बयान की 30, 30 के बाद 40, ऐसी बकरियों का मसलन जो है, बकरी मसलन निसाब बयान किया, मसलन सबसे पहले 40 बकरी, उसके बाद 121 बकरी है, फिर 201, फिर 301 मसलन। तो ये क्या है कि जो बीच में आ रहा है निसाब के, उस पर कोई चीज वाजिब नहीं है। मसलन हमारे पास 6 ऊँट हो गए, तो ज़कात कितने ऊँट की निकलेगी? सिर्फ 5 ऊँट होगी। जब तक 10 ना हो जाए तो ज़कात, यानी दूसरा निसाब पूरा नहीं हुआ तो ज़कात भी नहीं है, सिर्फ 5 पे निकलेगी। यानी हमारे पास 7 ऊँट है, 8 है, 9 है आज तक के। तो अब इसमें ये नहीं है कि एक बकरी और कुछ और अलग से इजाफा हो जाए, नहीं, बल्कि जब 10 हो जाएगी तो 2 बकरी होती, बीच में 5 और 10 के बीच में कोई चीज वाजिब नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास 30 गाय हैं तो एक तबिया मसलन वाजिब हुआ, सही, लेकिन हमारे पास जो है यदि 30 गायें रही हैं तो एक तबिया वाजिब हुआ। अगर हमारे पास जो है वो 35 गायें हो जाती हैं तो फिर क्या करें? क्या उस पर कुछ वाजिब होगा? कुछ नहीं, जब तक के 40 ना हो जाए, ठीक, जब तक 40 ना हो जाए। इसी तरह बकरी अगर हमारे पास 40 हैं तो एक मसलन शात तो वाजिब हुई, एक बकरी वाजिब होगी, या एक मसलन गनम, जो भी माने आप। अगर जो 121 है तो 2 होंगी मसलन, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो 40 और 121 के बीच में होता है, मसलन 100 हो जाती है, तो क्या देंगे? तो एक बकरी, सिर्फ एक बकरी बस, यानी दूसरा निसाब पूरा नहीं हुआ, दूसरी कोई चीज नहीं है साथ, बल्कि एक बकरी दी जाएगी, क्योंकि निसाब अभी एक हुआ है, दूसरा निसाब पूरा नहीं हुआ, यानी 40 के एतबार से एक बकरी देंगे। 120 भी अगर है तो भी कुछ नहीं है, 121 जब हो जाएंगी तो दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कह रहे हैं कि ज़मान वफिल फरीज़त तजिबु फी कुल्लि निसाब सुबह हाजिर अजनास, यानी अगर जो है वो ये निसाब के, हमने निसाब बयान किए, इसका फायदा भी वजूब ज़मान में भी ज़ाहिर होगा, है, यानी वाजिब होगा निसाब का जब एक निसाब पूरा हो जाए। एक निसाब हुआ है, दूसरा नहीं पूरा हुआ है, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। कुछ तलब हो जाता है तो उसकी भी आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, या जब ज़कात ही वाजिब नहीं है, सही है। इसी तरीके से जो ज़कात वाजिब होगी एक निसाब के बाद, जब तक दूसरा निसाब पूरा ना हो जाए तो आपके ऊपर कोई चीज वाजिब नहीं है, इन अजनास में जो हमने बयान की है। लेकिन गल्लात का निसाब जो है वो अलग है, गल्लात में ऐसा नहीं है। अगर गल्लात में 847 किलो आपके पास गेहूँ है तो आप पे ज़कात वाजिब होगी 847 किलो की। और आपके पास 947 किलो जाते हैं, 1047, तो उन सब पे ज़कात वाजिब है, उस तो उसी हिसाब से हिस्सा निकलेगा। यानी जो गल्लात है उसमें ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये जो हमने बयान किया, जैसे गनाम और बकरा, इनकी बात कर रहे हैं, इनमें इस तरीके से है कि एक निसाब जब तक है और दूसरा निसाब पूरा नहीं हो रहा है, तो एक निसाब से ज्यादा चाहे कितना हो जाए, जब तक दूसरा निसाब पूरा ना हो जाए तो दूसरे निसाब की ज़कात वाजिब नहीं है। यानी ये नहीं है कि हमारे पास 40 के बाद 100 बकरी हो गई तो हम एक तो निकालेंगे 40 की वजह से, और अभी 50 ज्यादा हो गई तो और निकाल दें, कुछ नहीं है, सही।
برعکس اس کے गेहूं वगैरह में आप ज़कात निकालेंगे तो आपको ऐसे उसमें ऐसा नहीं है, उसमें 847 किलो से आप पर ज़कात वाजिब हो गई, शुरू हो गई आपके पर ज़कात वाजिब। अब जितना बढ़ गया है कि वो अल्लाह आपको जितना ज्यादा दे रहा है, अल्लाह और बरकत दे, ज्यादा से ज्यादा दे, तो जितना बढ़ता रहेगा इतनी ज़कात, हाँ क्योंकि उसमें हिस्सा निकलेगा। सही है। वो उस वजह उसके एतबार से है कि आपने पानी खुद दिया है या पानी बारिश का बरसा है खुद दिया है, तो मसलन जो है वो सारा पानी खुद दिया है तो मसलन 20वां हिस्सा, और जो है वो सारा पानी आपने खुद दिया है तो 20वां हिस्सा, बारिश से ही हुआ है सब खेती पूरी तो 10वां हिस्सा, दोनों मिलके हुए हैं तो 15वां हिस्सा, मतलब इसी तरह मसलन जो है नतीजा ये निकलता है। ठीक है, तो यानी वो हिस्सा उसमें हिस्सा लिया जाएगा, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 847 किलो पर आपको वाजिब होगी और जो है बीच में अगर कुछ होता है दूसरे निसाब से तो उसमें वाजिब नहीं होगा, नहीं दूसरा निसाब उसमें है ही नहीं। बस उसमें तो यह है कि आपको 847 किलो से ज़कात शुरू हो गई, बाकी जितना बढ़ता चला जाएगा उस हिसाब हिस्सा निकालते चले जाएंगे। कह रहे हैं कि वलफरजतु तजबु बिकुल्लि निसाबिन मिन नसब हादिल अजनास वमा बैनल निसाबैन ला यजिबु फीहि शै, और दो निसाबों के दरमियान आपके ऊपर कोई चीज वाजिब नहीं है। इस्तेमाल नहीं करना, ये निसाब है किनका, जानवरों का है, अनाम है सलाता का। कभी आप उसी तदबीर पर गल्लात पे करें, गेहूं पे करें, ऐसा इस्तेमाल हो सकता है, तो उसे ध्यान में रखिएगा, इंशाल्लाह ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर जानवरों से बात है तो एक निसाब से दूसरे निसाब तक आप पर कुछ नहीं है, एक निसाब पूरा हो गया तो एक मसलन वाजिब है, एक निसाब की ज़कात मसलन 40 बकरियां तो एक बकरी, और उसके बाद आपके पास दूसरा निसाब 121 है, 121 है ना, 121 है, तो उसमें अगर जो है वो 100 भी हो जाती है आपके पास, 110 15 20 भी हो जाती है, तो आपके पास सिवाय एक बकरी के कुछ नहीं है। नक्तफी अला हज़ल मिक़दार, बाकी इंशाअल्लाह गदन से जी, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।